Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we are going to learn a new chapter 13 Samayan, which is at page number 100 in your textbook. In this chapter we will be learning about Lekhak, Zakir Ali Rajneesh. Lekhak means writer, and also we will learn about Professor Yasin. भविष्य की दुनिया, फ्यूचर्स वर्ल्ड, वर्तमान की ज़रूरत, द नीड ऑफ द प्रेजेंट. चैप्टर 13 समययान. समययान मीन्स टाइम मशीन. इस शीर्षक से पाठ के बारे में क्या पता चलता है? व्हाट डज द टाइटल रिवील अबाउट द टेक्स्ट? क्या हम भविष्य को देख सकते हैं? कैसे? कैन वी सी द फ्यूचर? हाउ? गांव, शहर, देश विदेश की यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन क्या समय की यात्रा संभव है? यह पाठ समय यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है. प्रोफेसर यासीन समययान को लेकर इतने रोमांचित हैं कि स्वप्न में 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कर आए, लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, उसे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि वर्तमान की ज़रूरत तो कुछ और ही है. Everyone travels from village to city, country and abroad. But is it possible to do travel of time? This lesson is based on the imagination of travel of time. Professor Yasin is so excited about the time machine that in the dream he travelled the whole world to 2500 AD. But seeing what he saw in the future world, he realized that the present need is something else. कंप्यूटरीकृत हालनुमा प्रयोगशाला के एक कोने में दो जोड़ी आँखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी. उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी. लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपने गर्भ में अनंत संभावनाएं छिपाए हुए था. उन्हीं संभावनाओं की तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर. इट मीन्स 2 big eyes were constantly seeing the screen in the laboratory, which was computerized and in the form of a big hall. The built-in power of that supercomputer was busy in examining a colorful globe machine. That colorful globe of about 8 feet in diameter was hiding endless possibilities in its womb. Supercomputer was busy reaching the bottom of those possibilities. आकाश की तरह शांत वे दो जोड़ी आँखें परिणाम की प्रतीक्षा में थीं. अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ न हो सकी थी. Those 2 pair of eyes, calm like sky, was waiting for the result. Non-stop heartbeat and uncontrollable breaths could not break their concentration. देखा विजय, हम जीत गए. अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हाल की निस्तब्धता तार तार कर दी. समय की आबाद गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली. अब हम समय की सीमा को चीरकर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं. Look Vijay, we won.
The very next moment, Professor Yasin broke the silence of the hall. Our time machine overcome the uninterrupted pace of time. Now, look at us, rip through the time frame and can go very easily to any time. मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निस्संदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित ना समझा। Congratulations, sir. Today, years of hard work has been successful. Your invention is undoubtedly going to prove useful in human welfare. Professor's assistant Professor Vijay also did not think it appropriate to hold back his feelings. धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। Thanks Vijay, but don't forget that you have also an equal contribution to this great success. यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा। This is your greatness, sir, or else what I am. Vijay laughed on himself. एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से भविष्य की ओर जाती थी। एक खूबसूरत कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। Once again, Professor Yasin got busy preparing for his trip with his colleague Vijay. A journey from present to future, a beautiful fantasy which was going to turn into reality and was a golden chapter in the history of humans' achievements. वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक ली थी। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाशगंगा में प्रवेश करने वाला हो। Keeping in mind the environmental changes, the professor took a special type of self-made dress. Now he looked like an astronaut who would enter an infinite Milky Way in search of a new planet. उस 8 फुटे सतरंगे समययान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगा आवरण तेज़ी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियाँ धीरे धीरे मिलकर सफ़ेद हुई और फिर अदृश्य, पर अंदर सब कुछ स्थिर था। घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र बड़ी तेज़ी से आगे की ओर 2000, 2050, 2100, 2300। His body was thrilled as soon as the professor stepped in the 8-foot colorful time machine. As soon as I got inside, he turned on the computer. Slowly, the time machine rose a height of half feet from the earth. Its colorful curtain began to rotate rapidly. The colorful strips slowly turned white and then invisible. But
everything inside was stable. Only the time cycle was moving very fast from 2000, 2050, 2100 and 2300. कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नज़र दौड़ाई। शाम के 5:25 यानी कि मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 की यात्रा संपन्न। अनायास ही उनके चेहरे पर मुस्कान की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। The predetermined time cycle by computer reached 2500 AD. The professor looked at wristwatch. It was 40 seconds, 25 minutes past 5 o'clock in the evening. That means it took just 10 seconds to complete the journey from 1900 to 2500. Unintentionally, smile popped up on his face. He switched off the computer and proceeded towards the door with excited steps. पर यह क्या? समयान के बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक रह गए। मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नज़र आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं। But what is this? He was completely speechless after seeing the scene outside the time machine. Instead of the smile, he had a grim face now. There was only sand outside. The sand is burning like furnace. Back and forth, left and right. Wherever the sight goes, there is only sand. Trees are far away. There was no grass even for the namesake. सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर न होकर चंद्रमा या फिर सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुँचे हों, जहाँ दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नज़रों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। Unbearable heat of the sun and lack of oxygen made him feel heavy every moment. He felt as if he had reached the moon or any other planet in the solar system, not on the earth, where there is no sign of life far and wide. After wearing a face mask, he started looking for something near the horizon from his old experienced eyes. दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निस्संदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे। पर यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की
तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है? प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ सामने नजर आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। प्रोफेसर यासीन, who lives in Karol Bagh, the busiest area of a prestigious city like Delhi. He was still standing in Karol Bagh, but this Karol Bagh was not of 1900 but of 2500 AD, and there was a difference of life and death between these two. Without the sign of life, the earth was making a picture of its destructions like a movie. But who is responsible for this great disaster? Nature or human? Professor Yasin was completely unable to find the answer to this question. Suddenly, he saw a shining thing in front of him. That object descended from the sky like tornado, and a cyclone of dust seeded into the earth. आशा और जीवन की मिली जुली इस छोटी सी किरण ने प्रोफेसर का उत्साह वापस ला दिया। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया और क्षण प्रतिक्षण उनके पैरों की गति बढ़ती चली गई। उम्र के इस ढलावा मोड़ पर वे जितने तेज दौड़े, उतनी तेज तो शायद वे कभी अपने युवावस्था में भी ना दौड़े होंगे। This small combination of hope and life brought back the enthusiasm of the professor. He quickly walked towards the place. The eagerness to meet his descendants instilled an amazing amount of power in his body, and at every moment his speed increased. He ran faster at this age than that he might have ran at his youth. लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई। पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाई और प्रोफेसर उससे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वे गिरे हैं किसी धातु की बनी है। The eyes fixed on the target suddenly could not see the transparent glass wall emerging in the middle, and the professor collided with it. Tired of excessive labor, his body fell unaccountably to the ground. His body fell uncontrollably to the ground. Then the professor realized that the surface of the earth on which he fell is made up of metal. अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन में गिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लिपटे सी उठती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्हीं
लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। सडनली an ambulance-like sound echoed in the atmosphere. Before Professor Yasin could understand anything, he was surrounded in a glass transparent cabin. The flames seemed to be rising outside due to the sun's heat. The time machine was standing away in the midst of those flames. The professor was watching this with helpless vision. तभी कैबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। वह लाली जब छाँटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पंजरे के अंदर पाया। That's when the red light began to explode in the cabin. Professor Yasin also suffered from this and he himself turned red. When that redness subsided, he found himself inside a prison cage. सहसा पिंजरे के बाहर एक आदमकद रोबो प्रकट हुआ। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज़ धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। Suddenly, a life-size robo appeared outside the cage. He pointed at the professor with his finger. A sharp flash of red light fell on the professor, and he was again transmitted to another location. क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? अगले दृश्य जगत में पहुँचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर ज़ोर से चीखे। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। Are your guests welcomed in this way? As soon as Professor Yasin reached to the next scene, he shouted loudly at the sight of the living people. He had already removed his mask. देखने में वह स्थान किसी न्यायस्थल के समान ही प्रतीत हो रहा था। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुल्जिम के कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन। यह देखकर प्रोफेसर हैरान थे कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थीं। यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम था। The place looked like a court. Professor Yasin was standing on the dock in front of the judge. Side by side, lawyer and audience were there. The Professor Yasin was surprised to see that everyone present there was pale-skinned like sunshine. Their hair was brown and eyes blue. This change was probably the result of environmental changes. कौन मेहमान? प्रोफेसर यासीन कहते हुए वकील व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। वे अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए बोले, मैं और कौन? Who is guest here? Professor Yasin saying. The lawyer smiled.
sarcastically. The professor was surprised to hear his name from the lawyer's mouth. He controlled his emotion and said, "Me, who else?" आप? वकील अभी भी मुस्कुरा। आप? वकील अभी भी मुस्कुरा रहा था। You? The lawyer was still smiling. वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूँ, तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? The professor was irritated after seeing the lawyer smiling. I have brought you the message of friendship from your ancestors from 1900. So, should I not be treated as a guest of your people? वकील गरज उठा। आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। लॉयर शाउटेड, You guys have prepared living tombs for your descendants. Today we are forced to live in those same tombs. Is this the gift of your friendship? Professor said, I did not understand anything. इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह ज़मीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। वकील ने कहना शुरू किया। प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है और आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। The court in which you are standing right now is built 10 feet below the ground. The lawyer began to say, We have no other option other than this to escape from pollution, lack of oxygen, and the ultraviolet rays from sun. Today, the trees on the earth are become extinct. Ozone layer has vanished. The sea level has increased. Cyclones and storms have become routine on earth. प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे और वकील बोले जा रहा था। ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग ना ज़्यादा हंस सकते हैं और ना ज़्यादा बोल सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं, पर एक मशीन बनकर रह गए हैं और हमारी इस ज़िंदगी के जिम्मेदार आप हैं। आपके समकालीन लोग हैं। आप अपराधी हैं, अपराधी। आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। The professor Yasin was standing like a robot and the lawyer continued to say, This all due to the pollution in the environment and destruction of the trees. Today, we can neither laugh nor speak more. With artificial oxygen we are living. But we are left to be like a machine, and you and the people of your time are the responsible for this life of ours.
You are the accused. You should be punished. Definitely you should be punished. कहते कहते वकील का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह बुरी तरह से हाँफने लगा। निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था। यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन भी आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। While talking, the face of the lawyer became reddish with anger. He started to shout aloud. Indeed, this is the result of lack of oxygen. Seeing this, Professor Yasin himself could not remain without surprise. मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। जज की गंभीर आवाज़ हाल में गूंज उठी। द प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज बीन गिवन द डेथ सेंटेंस इन दिस कोर्ट। द अथॉरिटिव वॉइस ऑफ द जज इज बीइंग echoed इन द हॉल। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद ना कर सके, जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। उनका मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो गए और मन अपराध बोध से भर गया। Professor could not speak anything against it, as if his ability to speak itself is no more. His mind became blank and heart is filled with guilt. जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। The red rays from the executioner robot transmitted the professor for the last time. When he came to consciousness, he found himself roaming around the room of the black hole, whose territory is slowly reducing and coming to its center. शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। Thinking of the future explosion that can dismantle every cells in the body, a cry of fear came out from the mouth of the professor. His eyes were closed by itself out of fear. लेकिन जब उनकी आंख खुली तो ना ही वहाँ अंतरिक्ष था और ना ही ब्लैक होल। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही वे स्वप्न देख रहे थे। पास में ही समययान खड़ा था, जो कि अपने आरंभिक चरण में था। When his eyes were opened, there was neither space nor black hole. He was sitting on his easy chair on his lap. He was sitting on the chair and he was dreaming. The time machine was nearby, which was in his initial stage. सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, आप आकर देख लीजिए। यह आवाज़ उनके सहायक विजय की थी। सर, द ब्लूप्रिंट ऑफ द टाइम साइकिल इज़ रेडी, प्लीज़ कम एंड सी। दिस वॉज द वॉइस ऑफ हिज असिस्टेंट विजय। नहीं विजय,
अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नो विजय, नाउ नॉट द टाइम टू नो विजय, नाउ नॉट द टाइम साइकिल but our own time that we need to see. Otherwise, the whole world will be buried alive in the grave. Saying this, the Professor Yasin moved towards the door. तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली रजनीश का जन्म 1 जनवरी 1975 को लखनऊ में हुआ। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में नियमित रूप से इनके लेख प्रकाशित होते हैं। बच्चों के लिए कई कहानियाँ और पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें विज्ञान कथाएं, कहानी के संग्रह, 7 सवाल, हम होंगे कामयाब, समय के पार एक उपन्यास है, आदि प्रमुख हैं। सन 1997 में इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड दिया गया और भी कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बालमन और हमराही के संपादक रहे हैं और भारतीय विज्ञान लेख संघ की आजीवन सदस्यता इन्हें प्राप्त है। समययान। कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा प्रयोगशाला के एक कोने में 2 जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगे ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। देखा विजय, हम जीत गए। समय की अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली। अब हम समय की सीमा को चीरकर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निसंदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक ली थी। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे, जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाश गंगा में प्रवेश करने वाला हो। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफेद हुईं और फिर अदृश्य। कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। शाम के 5:25:40 उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। मगर यह क्या, बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नजरों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज सामने नजर आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाईं और प्रोफेसर उससे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन में घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटें सी उठती हुई प्रतीत हो रही थीं।
उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। तभी केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। वह लाली जब छंटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया। सहसा पिंजरे के बाहर एक आदम कद रोबो प्रकट हुआ। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे, क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान प्रतीत हो रहा था। कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन? वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। वे अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए बोले, मैं। और कौन? आप। वकील को मुस्कुराता देख प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूं, तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह जमीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है और आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। ये सब पर्यावरण के छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग ना ज्यादा हंस सकते हैं और ना ज्यादा बोल सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं, पर एक मशीन बनकर रह गए हैं और हमारी इस जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं, आपके समकालीन लोग हैं। आप अपराधी हैं, अपराधी। आपको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुल्जिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थीं। सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, आप आकर देख लीजिए। नहीं विजय, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। So children, now you are clear with this chapter. This chapter gives us a message that we should not pollute our society and we have to protect our nature. And we will meet in the next session. Till that, take care.